बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to all parents and students in our 6th video class of week number 7. This is class 7 and the period of the science. In our previous class, we started chapter number 11, forces and their effects. We will continue this chapter in this class. We will discuss the remaining topics of chapter number 11, forces and their effects. First of all, we take the review of the chapter number 11 of the last video. Okay, what is the force? Force is the push or pull. When something is pushed or pulled, actually the force is applied on it. For example, lifting, kicking, pressing. Okay, these are the examples of forces. Effects of forces. The next topic is the effects of forces. What are the effects of forces? Okay, force can change the shape and the size of the body. Force can change the shape and the size of the body. Force can make stationary objects to move. Force can make stationary objects to move. Force can speed up, slow down or stop moving objects. Okay, the force can speed up, slow down or stop moving objects. Force can change the direction of moving objects. Force can change the direction of moving objects. These are the effects of forces. Now the next topic is the types of forces. There are many different types of forces. For example, magnetic force, gravitational force and air resistance force. Okay, these are the different types of forces. Now the next topic is the measuring forces. Force is measured through a instrument is known as the spring balance. जैसे हमने आपको पहले भी वीडियो में आपको दिखाया था कि स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू फोर्स को मेजर किया जाता है, लाइक दिस. ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस है जिसके थ्रू फोर्स को मेजर किया जाता है. टू टाइप्स ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, नंबर एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस एंड कंप्रेशन spring balance. Okay, extension spring balance and compression spring balance. These are the extension spring balance and compression spring balance. Extension spring balance are used in the laboratories and the compression spring balance are usually used in the grocery stores. Clear? In the spring balance, a pointer is attached to the spring. In a spring balance, the pointer is attached to the spring and a spring moves along the scale. Spring balance में एक pointer spring के साथ attach होता है, ठीक है, और ये spring जो होता है scales के along move करता रहता है, जो कि scale पर reading को show करता है. Stretch या compressed होने के बाद scales पर रीडिंग को शो करता है. क्लियर? द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स? न्यूटन. द SI यूनिट ऑफ फोर्स is Newton.
The SI unit of force is Newton. Okay. Now the next topic is the direction of force. Direction of force has a direction. Yes. ठीक है. For example, gravitational force moves towards the center of the earth. The direction of the gravitational force is towards the center of the earth, and the direction of the frictional force is opposite to the motion. Clear? Frictional force की डायरेक्शन जो मूवमेंट होती है बॉडी की उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है. ओके. 2 or more forces act on a body in a same time. बाज़ वक़्त आप जो है किसी भी बॉडी पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस भी एक्ट कर सकते हैं. इफ बोथ फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर 2 डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पर और उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, सो द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस. जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनके सम के इक्वल जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स होगी. सो द रेजिस्टेंस फोर्स रिजल्टिंग फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्टिंग फोर्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉक्स है उसके ऊपर जो है 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही है और उसी ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई कर रही है उसके ऊपर 30 न्यूटन, यानी एक साइड से बॉक्स को पुश किया जा रहा है 50 न्यूटन से और दूसरी साइड से बॉक्स को पुल किया जा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में 30 न्यूटन से. तो टोटल फोर्स इसकी कितनी होगी? 80 न्यूटन, और बॉक्स मूव करेगा टुवर्ड्स द फोर्स. जिस साइड में फोर्स अप्लाई की जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो बॉक्स मूव करेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ठीक है. इफ द फोर्सेस आर अनइक्वल इन साइज, अगर 2 डिफरेंट साइज की फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रही होती हैं तो, और अपोजिट है, और साथ साथ जो है वो फोर्सेस अनइक्वल भी हैं. ठीक है. इफ द फोर्सेस आर अनइक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर फोर्सेस जो हैं अनइक्वल साइज की हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस. तो रिजल्टेंट फोर्स जो होती है दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के इक्वल होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉक्स के ऊपर जो है राइट साइड पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, उसको पुश किया जा रहा है 50 न्यूटन से, और अपोजिट डायरेक्शन में उसको दोबारा पुश किया जा रहा है 30 न्यूटन से, तो इसकी रिजल्टेंट फोर्स जो होगी दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी 50 और 30 के. तो 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है उस ऑब्जेक्ट पर. ठीक है. और बॉक्स उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां से जो है ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जा रही है. क्लियर. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इक्वल फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाती हैं, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 इक्वल फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही हैं, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. ठीक है. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में उस वक्त होगा जब उस पर जो है इक्वल फोर्सेस अप्लाई की जाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई की जाएंगी. क्लियर. नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स. The next topic is the gravitational force. What is the gravitational force? ठीक है. The force of attraction between 2 masses is known as gravitational force. ठीक है. The force of attraction between 2 masses is known as gravitational force. For example, Earth's gravity, Sun's gravity. These are the examples of the gravitational force. These are the examples of the gravitational force. ठीक है. Now the next is the weight. What is the weight? ठीक है. Weight of an object is the gravitational force acting on it, on the object. किसी भी ऑब्जेक्ट का जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो उसका वेट होता है. The weight of an object is the gravitational force acting on the ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो उसका वेट होता है. द वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो द यूनिट ऑफ द वेट इज ऑल्सो द न्यूटन. क्योंकि जो है जो फोर्स की यूनिट है वही वेट की यूनिट होगी. फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन. तो
इसी तरह से वेट की यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन, क्योंकि वेट एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. मास, व्हाट इज द मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर का अमाउंट कहलाता है उसका मास. ठीक है. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर का जितना अमाउंट मौजूद होता है वो उसका मास कहलाता है. द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. ठीक है. Now the next is these are the revisional topics of this chapter which we discussed in our previous video class. ठीक है, हमने अपनी previous video class में जितने topics discuss किए थे ये उनका revision था. अब हम start करते हैं अपने remaining topics. ठीक है. The next topic is upthrust. Upthrust. What is the upthrust? When an object is partially immersed or totally immersed in water. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर डाला जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, अगर हम वाटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डिप करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसके ऊपर वाटर के अंदर डिप करते हैं, या तो हम इसको पार्शियली इमर्ज करते हैं या टोटली इमर्ज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो है ये टोटली इमर्ज हो गया, और यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये स्टोन है, इस स्टोन को हम वाटर के अंदर डिप करते हैं. ठीक है. ये पार्शियली इमर्ज किया है हमने इसको, स्टोन को वाटर के अंदर. ठीक है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर के अंदर इमर्ज किया जाता है, पार्शियली या टोटली इमर्ज किया जाए, तो वाटर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है. ठीक है. तो जब हमने ये स्टोन जो है इस वाटर के अंदर हमने इमर्ज किया, तो वाटर ने इस स्टोन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई की. ठीक है. अपवर्ड फोर्स अप्लाई की. दिस अपवर्ड फोर्स इज नॉन एज अपथ्रस्ट. ये अपवर्ड फोर्स कहलाती है अपथ्रस्ट. क्लियर? ठीक है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है, द वाटर प्रोवाइड्स एन अपवर्ड फोर्स और पुश ऑन इट. ठीक है. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में टोटली या पार्शियली इमर्ज किया जाता है, तो वाटर उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, एक पुश फोर्स अप्लाई करता है. द अपवर्ड पुश एक्टिंग ऑन एन object which is partially or totally immersed in a liquid is known as upthrust. Okay. When an object is immersed in water, the water provides an upward force or push. The upward force or push, ठीक है, acting on the object which is partially immersed or totally immersed in water, ठीक है, is known as upthrust. ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाटर में डिप किया जाता है, ठीक है, तो वाटर उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिस फोर्स को कहा जाता है अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट कहा जाता है. द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द अपथ्रस्ट की, जब हमने यहाँ पर स्टोन को वाटर के अंदर इमर्ज किया, तो अब यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक यहाँ पे वाटर का वेट और दूसरा यहाँ पर वाटर की अपथ्रस्ट फोर्स. एक स्टोन का वेट और दूसरा जो है वाटर की अपथ्रस्ट फोर्स. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्ज किया जाता है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं. एक इसमें होती है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और सेकंड होती है उसमें अपथ्रस्ट.
जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर टोटली पार्शली इमर्ज किया जाता है तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट, और दूसरा अप थ्रस्ट, ठीक है। वेट जो होता है, वेट्स एक्ट टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, बट द अप थ्रस्ट एक्ट टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि अप थ्रस्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। ओके, क्लियर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्ज किया जाता है तो वाटर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, एक पुश फोर्स अप्लाई करता है, उस पुश फोर्स को कहा जाता है अप थ्रस्ट। और जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्ज किया जाता है टोटली या पार्शली, तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक उस ऑब्जेक्ट का वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, जबकि दूसरा उस पर अप थ्रस्ट फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं। द अप थ्रस्ट फोर्स, जब भी हम यहाँ पर इस स्टोन के ऊपर जो अप थ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये अप थ्रस्ट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के, इस स्टोन के कुछ वेट को कैंसिल कर देती है, इस स्टोन के कुछ वेट को कैंसिल कर देती है। द अप थ्रस्ट कैंसिल आउट ऑफ सम ऑफ द वेट ऑफ द स्टोन, ठीक है, ये अप थ्रस्ट फोर्स ऑफ जो इस स्टोन के कुछ वेट को कैंसिल कर देती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में टोटली या पार्शली इमर्ज होते हैं तो अप थ्रस्ट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट को कैंसिल आउट कर देती है, कुछ वेट को कैंसिल आउट कर देती है। तो लास्ट यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम वेट करते हैं स्टोन का एयर में, इफ वी थ्रू द फोर्स मीटर, अगर हम फोर्स मीटर के थ्रू इस स्टोन का वेट करते हैं एयर में, तो इसका वेट है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। तो वेट ऑफ स्टोन वन न्यूटन इन एयर, weight of stone in air is 1 न्यूटन। एयर में इस वेट का स्टोन 1 न्यूटन है, ठीक है। अब हम इसको पार्शली इमर्ज करते हैं वाटर में, तो इसका जो वेट है देखिए कम हो गया ये 0.5 न्यूटन। अब इस पर हमें फोर्स मीटर पर जो इसकी रीडिंग शो हो रही है वो है 0.5 न्यूटन, यानी वेट कम हो गया। और ये वेट क्यों कम हुआ? दरअसल जो इसमें इमर्ज होने के बाद जो वाटर ने इस पर फोर्स अप्लाई की है, अप थ्रस्ट फोर्स ने इस स्टोन के वेट को कम कर दिया, और इसी वजह से यहाँ पर फोर्स मीटर पर इसकी रीडिंग शो हो रही है 0.5 न्यूटन। क्लियर? तो वेट ऑफ स्टोन इन वाटर in water 0.5 Newton. Okay. Now the difference in weight is, ठीक है, 0.5 न्यूटन। जो वेट में डिफरेंस आया है वो कितना है? 0.5 न्यूटन। So the up thrust force is अप थ्रस्ट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है इसके पर? 0.5 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे कितनी अप थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होगी? 0.5 न्यूटन। So the up thrust force is equal to the difference between the weight of stone in air and in the water. Okay, so the up thrust force is equal to the weight of stone, weight of object in air and in water. Now again listen it. देखिए, up thrust force is equal to the difference between
difference between the weight of object in air and in the water. ठीक है, अपथस फोर्स दरअसल जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट के डिफरेंस के इक्वल होती है, किसमें, एयर में और वाटर में. द अपथस फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ स्टोन इन एयर एंड इन द वाटर. क्लियर? क्लियर? अब यहाँ पर अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ टोटली इमर्ज हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट टोटली इमर्ज हो जाता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये वाटर के अंदर अगर हम डिप करते हैं तो ये टोटली यहाँ पे इसमें इमर्ज हो जाएगा टोटली. ठीक है, इसी तरह से ये फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी टोटली इमर्ज हो रहा है. तो कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है पानी में डूब जाते हैं, सिंक आउट हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं? कौन से? वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपथस फोर्स, जिनकी अपथस फोर्स उनके वेट से कम होती है. ठीक है, अपथस फोर्स उनकी वेट से कम होती है. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स पानी में इमर्ज, टोटली इमर्ज हो जाते हैं. क्लियर? ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जिनका वेट ज़्यादा होता है अपथस फोर्स से, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिनका वेट अपथस फोर्स से ज़्यादा होता है वो वाटर में टोटली इमर्ज हो जाते हैं. क्लियर? वाटर के अंदर टोटली इमर्ज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक वुड पीस लेते हैं, ठीक है, हमने वुड पीस लिया यहाँ पे, इस वुड पीस को अगर हम इस वाटर में डालते हैं तो ये टोटली इमर्ज नहीं हो रहा, ये फ्लोटिंग कर रहा है वाटर की सरफेस के ऊपर. क्यों? तो क्योंकि जो वाटर के ऊपर भी जो है, सॉरी, वुड पीस पर भी वाटर एक अपथस फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, वाटर, इस वुड पीस पर भी वाटर एक अपथस फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन अपथस फोर्स क्योंकि इक्वल है इस वुड पीस के वेट के. ठीक है, अपथस फोर्स इक्वल है इट वुड पीस के वेट के इक्वल है, इसी वजह से जो है इसका वेट कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा वेट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी वजह से ये वुड पीस जो है वो वाटर की सरफेस पर फ्लोटिंग कर रहा है. क्लियर? तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनका वेट अपथस के इक्वल होता है वो कंटिन्यूस, वो वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग करते रहते हैं, वो इमर्ज नहीं होते. ठीक है, वो सिंक नहीं होते वाटर के अंदर, वो वाटर के अंदर सिंक नहीं होते, वो फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो अपथस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वुड पीस. ठीक है, अपथस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वुड पीस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपथस फोर्स जो है वो वुड पीस के इक्वल है, इसी वजह से वुड पीस जो है वो वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग कर रहा है. तो फॉर यहाँ पर अगर बूट्स होती हैं, ठीक है, बूट्स वगैरह, शिप्स वगैरह फ्लोटिंग करते हैं में, वो सिंक नहीं होते, डूबते नहीं हैं पानी में, क्योंकि उन पर जो अपथस फोर्स अप्लाई हो रही है वो दरअसल वो उनके वेट के इक्वल होती है. क्लियर? कोई भी फॉर एग्जांपल रबर है, फॉर एग्जांपल रबर डक, कोई भी टॉय रबर डक है, ठीक है, वो भी फ्लोटिंग करती रहती है. ठीक है, वाटर सरफेस पर, क्योंकि उस पर जो अपथस फोर्स अप्लाई हो रही है वो इसके वेट के इक्वल होती है. क्लियर? तो व्हाट इज द अपथस फोर्स? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज partially or totally immersed in water, the water provides an upward force or push on it. The upward push or force, ठीक है, acting on an object which is totally or partially immersed in water is known as upthrust. Clear? The next topic is the density. Density of a substance is equal to the mass of the substance in per unit volume. Density of a substance
is equal to the mass of the substance per unit volume. किसी भी substance के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना उसका मास मौजूद होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है. किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास मौजूद होता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है. डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द डेंसिटी इज द मास of substance per unit volume. Okay, density of a substance is equal to the mass of the substance per unit volume. So the density is equal to the density of a substance is equal to the mass of the substance. So the density of a substance is equal to the mass of the substance. Density is equal to the mass of the substance per unit volume. Clear? So it's the formula of the density. Density is equal to the mass of a substance per unit volume. So the formula of the density is equal to mass per volume. Clear? यहाँ पे हमें अगर हमें मास रिक्वायर्ड हो तो यहाँ पे हम क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. अगर हमें मास रिक्वायर्ड हो किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. ठीक है, अगर हमें डेंसिटी रिक्वायर्ड हो तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर? Clear? Density is equal to mass upon volume. If we require the mass is equal to density into volume. ठीक है? If we require the volume is equal to mass upon density. Mass upon density. Okay? Mass upon density. What is the unit of the density? Unit of density. What is the unit of the SI unit of the density? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास density, the unit SI unit of the mass is the kilogram. The kilogram, the unit of the mass is the kilogram. ठीक है, and the unit of the volume is the cubic meter. So the unit of the density is equal to density kilogram per cubic meter. The unit of the density is kilogram per cubic meter. Okay, now if we take the gram, ठीक है, ग्राम या फिर कर लें ग्राम पर, और डेंसिटी, unit of density is the gram per cubic meter, cubic centimeter, gram per cubic centimeter. Okay, gram per cubic centimeter. These are the units of the density. ठीक है, the kilogram per cubic meter और gram per cubic centimeter. These are the units of the density. Clear? We solve numericals of density. Density of osmium
block of osmium is an object, ठीक है. Osmium block is 22.6 gram per cubic meter. The mass of a block, mass of block of osmium was found to be 113 gram. 113 gram. Find its वॉल्यूम. ठीक है, एक ऑस्मियम ब्लॉक है और उसकी जो डेंसिटी है वो है 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, और द मास ऑफ द ऑस्मियम ब्लॉक, और उसका मास है हमारे पास 113 ग्राम. फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम. ओके, डेटा फॉर्म करें इसका. इसमें डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम, डेंसिटी है 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. नाउ द मास ऑफ द ऑस्मियम इज, मास ऑफ ऑस्मियम, मास है हमारे पास इसके बाद 113 ग्राम. ठीक है, फाइंड आउट करना है हमें इसका वॉल्यूम. फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है. सॉल्यूशन. ठीक है, टेक द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. वॉल्यूम इज इक्वल टू mass upon density. Put the values of mass and density in the formula. Mass 113 gram and the density 22.6 gram per cubic centimeter. 22.6 gram per cubic centimeter. Gram to gram cancel. Okay, now calculate this. The volume of osmium block is, the volume of osmium block is 5 cubic centimeter. Okay, clear? यहाँ पर हमें ऑस्मियम ब्लॉक का यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है. ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका हमें जो दिया गया है मास दिया गया है, और फाइंड आउट करना है हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख द डेटा. डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम इज 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. द मास ऑफ द ऑस्मियम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 113 ग्राम. ठीक है, वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड. फाइंड आउट द वॉल्यूम सॉल्यूशन. ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ मास एंड डेंसिटी. ठीक है, 113 एंड 22.6 ग्राम डिवाइडेड दीज वैल्यूज. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द ऑस्मियम ब्लॉक इज 5 cubic centimeter. क्लियर? नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर ऑफ solve the question number 10 from review question from your book, page number 255. ठीक है, open your books, page number 255. We solve the question number 10. ठीक है, from the review question. ठीक है, question number 10. ठीक है,
व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? द मास ऑफ अ 30 cubic centimeter stone is 180 gram. ठीक है, द मास ऑफ a repeat question 10. Okay, the mass of a the mass of a 30 cubic centimeter stone is 180 ग्राम. ठीक है, ए पार्ट में कह रहे हैं कि कैलकुलेट्स इट्स डेंसिटी. ठीक है, इसकी डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है. बी पार्ट में आपके कह रहे हैं कि अगर हम द स्टोन इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस. ठीक है, स्टोन को 2 पीसेस में हम डिवाइड कर देते हैं. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ईच पीस? हर पीस की डेंसिटी कितनी होगी? ठीक है, डेंसिटी ऑफ हाफ पीस ऑफ वुड ऑफ स्टोन. ठीक है, हमने स्टोन को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया और हाफ पीस की डेंसिटी हमें मालूम करनी है. सी पार्ट में कह रहे हैं कि द स्मॉलर पीस वेट 80 ग्राम. अगर छोटा पीस है उसके वेट जो है वो 80 ग्राम है. कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे मास दिया जा रहा है. मास ऑफ स्मॉलर पीस कितना है? मास ऑफ स्मॉलर पीस 80 ग्राम. ठीक है, फिर हमें इसको क्या मालूम करना है? इसका वॉल्यूम मालूम करना है. हमें इसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड है. क्लियर? तो ये है रिव्यू क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, द मास ऑफ अ 30 क्यूबिक सेंटीमीटर स्टोन इज 180 ग्राम. एक स्टोन है जिसका वॉल्यूम जो है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर है और उसका मास है 180 ग्राम. तो इसकी हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. उसके बाद कह रहे हैं कि उस स्टोन को 2 हाफ पीसेस में डिवाइड कर दिया गया है, तो फिर उसके दोनों पीसेस की डेंसिटी मालूम करनी है. उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ स्मॉलर पीस, छोटा पीस है उसका मास कितना है? 80 ग्राम है, तो उसका वॉल्यूम मालूम करना है. सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे इसका. ठीक है, ए पार्ट में हमें क्या है कि डेंसिटी मालूम करनी है. ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेंसिटी का. मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. पुट द वैल्यूज ऑफ द मास एंड द वॉल्यूम. ठीक है, क्या अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें ये हम मास और जो है उसके मास और वॉल्यूम की वैल्यूज यहाँ से फॉर्मूले में पुट कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये इसका मास है, सॉरी ये वॉल्यूम है और ये इसका मास है. क्लियर? तो यहाँ पे हम डेंसिटी, मास इसका है 180 ग्राम और वॉल्यूम है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे आंसर आएगा. डेंसिटी है इसकी, डेंसिटी आ जाएगी इसकी 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. क्लियर? ए पार्ट में हमें डेंसिटी रिक्वायर्ड थी. डेंसिटी इसकी आई है 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. नाउ वी सॉल्व द सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट, ठीक है, वी फाइंड आउट द डेंसिटी. हम मालूम करेंगे डेंसिटी को
ठीक है। इफ द स्टोन ब्रोकन डाउन इनटू 2 पीसेस, तो जब स्टोन को 2 पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा और उसका मास भी हाफ हो जाएगा। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए मास ऑफ स्टोन हमारे पास कितना है, मास ऑफ स्टोन 180। अब 2 पीस में डिवाइड किया है तो हम कर देंगे इसको 2 से डिवाइड, तो हमारे पास जाएगा 90 ग्राम। क्लियर। और वॉल्यूम ऑफ स्टोन, ठीक है, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करना है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम के मास की वैल्यू 90 ग्राम और वॉल्यूम की वैल्यू 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो डेंसिटी फाइंड आउट हो गई इसकी इज इक्वल टू 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी अगर हमने हाफ पीसेस में स्टोन को डिवाइड किया तो तभी इसकी डेंसिटी आई 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक आपको। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट बी पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हम आते हैं सी पार्ट पर। ठीक है, हमें सॉल्व करना है सी पार्ट। सी पार्ट का जो डेटा गिवन है वो है इसमें मास ऑफ स्मॉलर पीस 80 ग्राम, यानी हमें मास हमें दिया जा रहा है। ठीक है, और कह रहे हैं फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ स्टोन 80 ग्राम, मास ऑफ स्टोन 80 ग्राम। ठीक है, हमें डेंसिटी हमें मालूम है, हमने जो फाइंड आउट की है डेंसिटी 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं डेंसिटी को 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो सो द फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। यहाँ पे हमें सी पार्ट में इसका वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। सो पुट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। Put the values of mass and density. Volume is equal to mass 80 gram, mass as 80 gram and density 6 gram per cubic centimeter. Okay, now the volume, simplify these values, cubic ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो द वॉल्यूम इज 13.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ द वॉल्यूम इज द 13.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रैक्शनल फोर्स। यहाँ पे डेंसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। हमारे रिव्यू क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल था, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 10 में, वो आपको ये सॉल्व करवा के समझा दिया गया है। ठीक है, और आपको एक एग्जाम्पल दे दी गई है। अब आपको एक वीडियो होमवर्क जो दिया जाता है उसमें एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, फ्रैक्शनल फोर्स। डेंसिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग
एंड सिंकिंग। ठीक है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। यहाँ पे उम्मन हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया था अपथस्ट में कि यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे डाले थे जो वाटर में सिंक हो गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमने वुड डाली थी तो वो सिंक नहीं होती, वो वाटर की सरफेस पर कंटिन्यूसली फ्लड कर रही थी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है दरअसल अपथस्ट के साथ साथ जो है वो डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का फ्लोटिंग और सिंकिंग दरअसल डिपेंड्स करता है उनकी डेंसिटीज़ पर। यहाँ पर जो चार्ट मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद हैं, उन मटेरियल्स की यहाँ पर डेंसिटी भी बताई गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये वाटर ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन की ये ग्लिसरीन है, ठीक, ग्लिसरीन की डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ग्लिसरीन के ऊपर लेयर मौजूद है वाटर की डेंसिटी है 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इससे ऊपर जो है मौजूद है कॉर्न ऑयल। ठीक है, कॉर्न ऑयल की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप ये देखें कि जो इनकी डेंसिटीज़, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ग्लिसरीन से कम है इसलिए इसकी सरफेस पर मौजूद है। ठीक है, इसके साथ मिक्स नहीं हो रही, ये इससे जो है इसकी अपर सरफेस पर ही मौजूद रहेगा वाटर ग्लिसरीन की। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो है वो ग्लिसरीन से कम है। अगर हम बात करते हैं कॉर्न ऑयल की डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम है, तो इसलिए कॉर्न ऑयल जो है वो वाटर की सरफेस पर ही रहता है, इसके अंदर जो है मिक्स नहीं होता या फिर इसके अंदर जो है इसके साथ जो है अंदर की तरफ नहीं चला जाता। क्लियर? तो यहाँ पर जो है तो वो सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटीज दूसरे सब्सटेंस से कम होती हैं वो उनकी सरफेस पर ही फ्लोटिंग करते रहते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटीज दूसरे सब्सटेंस से कम होती है वो उनकी सरफेस पर ही फ्लोटिंग करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों लेयर्स मौजूद हैं, ग्लिसरीन की, वाटर की और कॉर्न ऑयल की। अब हम डिफरेंट सब्सटेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिया हमने एक ग्लास पीस। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर एक ग्लास पीस लिया जिसकी डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। ये कॉर्न ऑयल, वाटर, ग्लिसरीन तीनों की डेंसिटी से ज़्यादा थी, इसलिए ये तीनों में सिंक हो गई, इसलिए ग्लास तीनों में सिंक हो गया। ठीक है, और हो गया क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, तीनों से ज़्यादा थी, तीनों लिक्विड से। उसके बाद लिया एक आइस क्यूब लिया, उसकी डेंसिटी, आइस क्यूब की डेंसिटी वाटर से कम होती है, उसकी डेंसिटी होती है 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर की डेंसिटी 1.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और आइस क्यूब की डेंसिटी है 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आइस क्यूब की डेंसिटी वाटर से भी कम है, इसलिए ये वाटर में सिंक नहीं होती, वाटर की सरफेस पर कंटिन्यूसली फ्लोटिंग करता रहती है आइस। कि आइस इसलिए वाटर की सरफेस पर फ्लोटिंग करती रहती है क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पर जो है सब एक लिया कॉर्क पीस की डेंसिटी है 0.24 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सबसे कम डेंसिटी है, इसलिए किसी भी लेयर में मर्ज नहीं होगा, बल्कि ये कॉर्न ऑयल की सरफेस पर ये फ्लोटिंग करता रहे, कॉर्क पीस। क्लियर? तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटीज कम होती है वो दूसरे सब्सटेंस में जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनमें सिंक नहीं होते बल्कि उनकी सरफेस पर फ्लोटिंग करते रहते हैं। क्लियर? तो इसी तरह से यहाँ पर जो है एक हमारे पास एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन होता है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंक हो जाते हैं वाटर में और लाइट ऑब्जेक्ट्स फ्लोटिंग करते रहते हैं। अगर अब इसको देखा जाए तो जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो क्यों फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, वो क्यों सिंक नहीं होते वाटर के अंदर? क्योंकि वो तो वेट तो उनका हैवी होता है। दरअसल इसका रीज़न उनकी फ्लोटिंग करने का, वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग करने का रीज़न ये होता है कि उनकी शेप इस तरह की होती है शिप्स की कि उसके अंदर एयर का एक बहुत बड़ा मास मौजूद होता है, एयर का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम मौजूद होता है। उस एयर वॉल्यूम की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है और साथ साथ उसके ऊपर अपथस्ट फोर्स भी अप्लाई हो रही होती है। तो एयर की
डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कम होने की वजह से और अपथर्स्ट फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो है वो शिप्स और बोट्स वगैरह वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग करते रहते हैं, उसके अंदर डिप नहीं होते। क्लियर? यहाँ पर हमारा डेंसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, फ्रिक्शनल फोर्स। The next topic is the frictional force. What is the frictional force? The force which opposes the motion of objects is called frictional force. The force which opposes the motion called the frictional force. ठीक है, एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को अपोज करती है, रोकने की कोशिश करती है, ठीक है, वो फोर्स कहलाती है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है, उसको मूवमेंट को अपोज करती है, उस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स? ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? द फोर्स विच अपोज द मोशन, द फोर्स विच अपोज द मोशन इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, एक्ट्स इन द अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये बॉक्स मौजूद है, ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स मौजूद है, ये एक सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इस वुडन ब्लॉक को, ठीक है, इसको यहाँ से मूव किया जाता है, तो वुडन ब्लॉक की सरफेस और फ्लोर की और सरफेस के बिटवीन, वुडन ब्लॉक और सरफेस के बिटवीन जो एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जो इसकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगी, इसकी मूवमेंट को स्लो करेगी, उस फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? तो द फोर्स विच अपोज द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एंड इट्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, अगर वो बॉक्स जो है वो राइट साइड मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड प्रोड्यूस होगी, एक्ट करेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड एक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉमन सी एग्जाम्पल लेते हैं, दो बुक्स ले लें, ठीक है, और ये दो बुक्स लें और इन बुक्स के पेजेस को ओवरलैप कर लें। ठीक है, इस तरह से दोनों के बुक्स के पेजेस को ओवरलैप करते जाएं। अब जैसे जैसे हम बुक्स के पेजेस को ओवरलैप कर रहे हैं तो हर पेज के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्ट करेगी। यहाँ पे हर पेज के बिटवीन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस एक्ट करेगी। यहाँ पे हमने दोनों बुक्स को ओवरलैप कर लिया। ठीक है, अब बुक्स को जब ओवरलैप करने के बाद अब इसके ऊपर जो है इनको पुल करें दोनों फोर्स बुक्स को, और दोनों को सेपरेट करने के लिए कोशिश करें, दोनों को सेपरेट करें। सेपरेट करने के लिए हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेपरेट करने के लिए हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पुल फोर्स अप्लाई करने के बावजूद दोनों बुक्स सेपरेट नहीं हो रही। क्यों नहीं? आप फोर्स क्यों सेपरेट नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेजेस हमने ओवरलैप किए हैं, जितने भी पेजेस हमने यहाँ पर ओवरलैप किए हैं, हर पेज के बिटवीन एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। हर पेज के बिटवीन एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारी अप्लाई करने वाली पुल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों बुक सेपरेट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, अपोज द मोशन, ठीक है, द फोर्स विच अपोज द मोशन इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स जो है मूवमेंट को रोकती है, अपोज करती है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स।
ठीक है। इसी तरह से अगर जो कोई भी दो सरफेसेस मौजूद हैं, ठीक है, दो सरफेसेस के बिटवीन जो है फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। कोई भी दो सरफेसेस मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बुक ये है हमारे पास, ठीक है, और ये दूसरी बुक है। अगर हमारे पास ये दो बुक्स हैं तो इनके बुक्स के सरफेसेस के बिटवीन भी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, दोनों बुक्स के बिटवीन। जब दो सरफेसेस के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब दोनों सरफेसेस जो होती हैं वो स्मूथ ना हो, इर्रेगुलर सरफेसेस हो दोनों, ठीक है। तो दो सरफेसेस के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब दोनों सरफेसेस इर्रेगुलर हों, ठीक है। जब सरफेसेस इर्रेगुलर होंगी, फॉर एग्जांपल दो सरफेसेस हैं और दोनों की सरफेसेस ये इर्रेगुलर हैं, ठीक है। अब जब दोनों सरफेसेस के बिटवीन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब दोनों सरफेसेस के जो टाइनी प्रोजेक्शंस इंटरलॉक हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों सरफेसेस के फ्रिक्शनल फोर्स उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब दोनों सरफेसेस के जो टाइनी प्रोजेक्शंस हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। ये दोनों सरफेसेस के टाइनी प्रोजेक्शंस आपस में इंटरलॉक हो गए, ठीक है। अब हम इनको मूव करने के लिए यहाँ पर इन दोनों सरफेसेस के बिटवीन में जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे फोर्स, तो दो सरफेसेस के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब दोनों सरफेसेस के बिटवीन टाइनी प्रोजेक्शंस होती हैं और वो टाइनी प्रोजेक्शंस एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं, और जब दोनों को मूव करती हैं तो उनके बिटवीन जो है फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उनकी मूवमेंट को अपोज करती है, उनकी मूवमेंट को रोकती है, ठीक है। उसके बाद मेजरिंग ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजरिंग ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर किया जाता है और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जो है स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बॉक्स है, वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक पे और सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर किया जाएगा स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। मेजर किया जाएगा और स्प्रिंग बैलेंस को फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे अटैच कर देते हैं स्प्रिंग बैलेंस को वुडन ब्लॉक के साथ, ठीक है। अब इसको यहाँ से पुल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पुल करने के दौरान इसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई की जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ से पुल किया जाएगा। पुल करने के लिए जिस पॉइंट पर ये ब्लॉक स्लिप होना स्टार्ट हो, उस पॉइंट पर यहाँ पे जो है स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग मेजर कर ली जाती है। और ये रीडिंग जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स को शो करती है, जितनी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुई है वुडन ब्लॉक और सरफेस के बिटवीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ये स्टोन है, ठीक है। अब इसके ऊपर कितनी फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर इस स्टोन को, ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे रखा, अब इस सरफेस और इस, ठीक है, इस स्टोन और सरफेस के बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुई है इसको हम स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर करेंगे। अब हमने यहाँ पर इसको जो है मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको, ठीक है, पुल करेंगे स्प्रिंग बैलेंस को। पुल करने पर जब स्ट्रेच होगा इसका स्प्रिंग, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये स्टोन स्लिप होना स्टार्ट हो, ठीक है, वहां से हम जो है वो रीडिंग नोट कर लेंगे स्प्रिंग बैलेंस से, और यही रीडिंग जो है शो करेगी फ्रिक्शनल फोर्स को कि इसमें कितनी फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इन दोनों सरफेसेस के बिटवीन,
क्लियर? उसके बाद है फ्रिक्शनल, इज फ्रिक्शनल फोर्स यूजफुल, कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या यूजफुल होती है? ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो है वॉकिंग, चलना। अगर हम वॉक करते हैं ग्राउंड पर, फ्लोर पर, तो हमारे जो शूज़ और फ्लोर के बिटवीन दरअसल फ्रिक्शन मौजूद होती है, जिसकी फ्रिक्शन की वजह से हम जो है वो वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दरअसल इसी वजह से के वॉक, ठीक है, फ्रिक्शन के विदाउट फ्रिक्शन वी विल नॉट बी एबल टू वॉक। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन वी विल नॉट बी एबल टू वॉक। अगर हमारे शूज़, ठीक है, और जो है फ्लोर के बिटवीन फ्रिक्शन नहीं होगी तो चलना जो है नामुमकिन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ऐसी एग्जांपल लेते हैं, अगर आइस पर चला जाए या फिर किसी बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी फ्लोर पर चला जाए तो उस वक्त शूज़ और फ्लोर के बिटवीन कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी, जिसकी वजह से उस स्लिपरी फ्लोर पर या आइस पर चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्लियर? इसी तरह से अगर हम चॉक के थ्रू, ठीक है, चॉक से जो हम राइटिंग कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे जब हम राइटिंग कर रहे हैं तो चॉक और बोर्ड सरफेस के बिटवीन भी फ्रिक्शन मौजूद होती है और इसी फ्रिक्शन की वजह से राइटिंग की जाती है। अगर यहाँ पर जो है फ्रिक्शन मौजूद ना हो, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस हो, स्लिपरी सरफेस हो, तो चॉक स्लिप हो जाएगी, चॉक स्लिप हो जाएगी और राइटिंग नहीं की जाती, राइटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर पेन की ग्रिप है, ठीक है, पेन को जो हम ग्रिप करते हैं या पेंसिल को ग्रिप कर रहे हैं या चॉक को ग्रिप कर रहे हैं, ये भी दरअसल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हम इसको ग्रिप कर रहे हैं। क्लियर? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने पाम्स को जो रब करते हैं, हमें रब करने से दोनों पाम्स के बिटवीन फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और इस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है जो पाम्स को हीट अप कर देती है। ठीक है, बॉडी को वार्म अप करती है, बॉडी को वार्म अप करती है। तो जो फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, जब इसी तरह से अगर पैराशूट, ठीक है, और एयर के बिटवीन भी जो एयर के बिटवीन भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है और ये जो फ्रिक्शन होती है ये पैराशूट की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसी तरह से गाड़ियों में मौजूद जो ब्रेकर्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, ब्रेक्स जो होते हैं फ्रिक्शन की वजह से स्पीड को स्लो करते हैं और या फिर स्टॉप करते हैं। गाड़ियों में मौजूद ब्रेक्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से स्पीड स्लो करते हैं और स्टॉप करते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए या स्लिप होने से बचने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए या स्लिप होने से बचने के लिए टायर्स और शूज़ में ट्रेड्स बनाए जाते हैं। टायर्स और शूज़ में ट्रेड्स बनाए जाते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखें, ये ट्रेड्स क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल ताकि जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। ठीक है, ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए और स्लिप होने से बचने के लिए टायर्स और शूज़ में ट्रेड्स बनाए जाते हैं। टायर और शूज़ के सोर्स में मौजूद ये ट्रेड्स जो होते हैं ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं और बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं और बेटर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात फ्रिक्शन जो है यूज़फुल नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो हमारे पास बूट्स हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात जो है फ्रिक्शन जो है यूज़फुल नहीं रहती। फॉर एग्जांपल ये जो बूट्स हैं, बूट्स और वाटर के बिटवीन भी जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, बूट और वाटर के बिटवीन भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन जो यूज़फुल नहीं है क्योंकि ये जो है इसकी स्पीड को स्लो कर देती है। ठीक है, प्रोड्यूस होने वाले फ्रिक्शन, ठीक है, बूट की स्पीड को स्लो कर देती है। इसी वजह साथ साथ जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ली जाती है एयरशिप की एग्जांपल्स। ठीक है, एयरशिप्स की एग्जांपल दी जाती हैं। एयरशिप्स और एयर के बिटवीन भी, एयरशिप और एयर के बिटवीन भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है और ये फ्रिक्शन भी इसकी स्पीड पर इफेक्टेड होती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है मशीन्स के मूविंग पार्ट्स के बिटवीन भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मशीन्स के, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है और मशीन्स वार्म अप हो जाती हैं।
ठीक है, मशीन्स के मूविंग पार्ट्स के बिटवीन भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शंस जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से मशीन्स जो है वार्म अप हो जाती हैं। फ्रिक्शन की वजह से मशीन के पार्ट्स जो होते हैं वो डाउन होते जाते हैं और मशीन्स की एफिशिएंसी जो है कम होती चली जाती है। क्लियर? इसके अलावा जो फ्रिक्शन है वो जो है फ्रिक्शन जो है वियर और टेयर का काज भी बनती है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टेयर। देखें यहाँ पे फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टेयर। फ्रिक्शन जो है वियर एंड टेयर का फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टेयर। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो है यहाँ पे जो है ब्लैड टायर्स, ठीक है, बॉल टायर्स और वॉन्ड्स ऑफ सूल्स, इसका कॉज भी फ्रिक्शन है। उसके बाद रिड्यूस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाएगा? फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए, ठीक है, लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? दरअसल ऑयल, ग्रीस या बॉल बेरिंग्स यूज किए जाते हैं फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए। ठीक है, या फिर जो है फ्रिक्शंस को खत्म करने के लिए जो है वो शेप्स जो बनाई जाती है, एरोप्लेन्स की शेप्स या फिर बूट्स की शेप या फिर जो है एयरप्लेन्स की शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, जो कि फ्रिक्शन को कम कर देती है। ठीक है, इस तरह से जो है फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। ऑयल, ग्रीस, ठीक है, ऑयल, ग्रीस या लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं जो कि फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। ओके, नाउ द explanation of chapter number 11 has been completed. Now note down the homework. Solve the problem. The density of copper block is 8.9 gram per cubic centimeter. The mass of the block is 110 gram. Find its volume. यहाँ पर आपको एक कॉपर ब्लॉक है, उसका जो डेंसिटी है उसकी 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और उसका मास जो है 110 ग्राम पर क्यूबिक ग्राम है। आपको इसका मालूम करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इट्स द वीडियो होमवर्क। नाउ द कॉपी होमवर्क। Note down the copy homework. You will do think tank. Book page 255. Think about it. Book page 235, 249. Try it out. Book page 231, 235. You will do all these questions from your copies from your content solution. Okay, the explanation of chapter number 11 has been completed. Now we will give review, okay, of all the chapters in our next video. Till then, take care and Allah Hafiz.